Less than 60 days left for NEET 2025, and this is the time where you have to push yourself to the extreme limits. You have to do the things that maybe you thought were impossible. You have to study 12, 14, 16 hours every single day just to give yourself the best chance of cracking this examination. Hey everyone, I'm Aniket. I scored 650 in NEET 2024, currently preparing for NEET 2025, and in this video, I'll be sharing my extreme routine for the last 2 months. So my revision plan for the last 2 months consists of two major things. First is extreme dedication. By extreme dedication, I mean studying 12 to 14 hours every single day. क्योंकि I believe पूरे साल 14 घंटे पढ़ना every single day is not possible. ठीक है, you will get sick, बीमार हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का, and a lot of other factors. It's just not possible. You will need break days. But studying 14 hours every single day for only 50-60 days, I think that's very possible. And अंतिम के 50-60 days, you can do this. क्योंकि वो डिज़ायर भी रहता है, वो हमेशा मन में भी बात रहती है, दिल में भी बात रहती है कि 60 दिन बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है. So you have to work towards that. So I think first is extreme dedication. You have to be dedicated to this completely, and I am. I know I was last year, and अभी भी पहला point वही रहेगा. Second point is working on the main things that matter. What are these three main things? First is previous year questions. Previous year questions are the pillar of any competitive examination, rather it be NEET, IIT, JEE or any other examination. I don't know, I'm saying about most of the examination, because यही questions आए यही questions आएंगे. So what I'm doing right now, currently from the 1st of March, I'm solving previous year questions for the last time. मैं पिछले 20 साल के previous year questions बना रहा हूँ अभी. For context, I've already solved last 37 years of previous year questions of physics and chemistry 3 to 4 times, and this is my last time जहाँ मैं सारे questions 20 years के एक बार बना रहा हूँ, and the question that I was not able to solve एक बार वो भी देख लूँगा of 37 years. That's my plan regarding previous year questions. ये अभी होगा. This will go till around 10th or 15th of March. By the way, if we hit 5,000 subscribers before 31st of March 2025, मैं अपने सारे mock test scores reveal कर दूंगा. So if you want to know my mock test score, do subscribe right now. Second thing I'm doing is studying bio every single day for 3 to 4 hours in the early morning. So what I'm doing right now is I'm getting up early at around 5 to 6 a.m. every single day. कभी कभी लेट हो जा रहा है, but it's fine, धीरे धीरे आदत बन जाएगी. And I start my day with bio, 3 to 4 hours of bio, just revision, just going through NCERT. I try to study 5 to 6 chapters every single day. In this way, I'm able to revise entire bio once every week. So this is my plan for bio for the next 4 weeks. 4 बार कंप्लीट बायो का एनसीईआरटी को पढ़ना डिटेल्ड वे में एवरी सिंगल लाइन, सो दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई बायो. सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग. आई बिलीव सारे स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन में अभी, किसी का मॉक टेस्ट में ध्यान नहीं होगा ज़्यादा, किसी ने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, किसी का मे बी फिजिक्स वीक है, उतना रिविजन नहीं हुआ है, केमिस्ट्री में नहीं हुआ रिविजन, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है. सो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट. वर्क, फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, वेयर डू यू लैक. रिविजन्स में लैक कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई इतनी में भी फिजिक्स में, या मॉक टेस्ट नहीं दी, मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं बनी अभी तक, 3 आवर्स लगता है बैठ के. सो फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग एट, एंड मेन अपने रिविजन प्लान को उसके तरह से इंप्लीमेंट करो. इफ़ यू विल जस्ट गो टू ट्राई टू कॉपी समवन एल्सेस प्लान, ये वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा. कच एवरी वन इज एट डिफरेंट स्टेज राइट नाउ, है ना. लास्ट 2 मंथ बचे, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरिया. अब कोई टॉपर आके बोलेगा जिसको 680 मार्क्स सारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, वो आके बोलेगा रोज एक मॉक टेस्ट दो, एंड यू विल बी लाइक अच्छा मॉक टेस्ट इज द की, क्योंकि 1 मॉक टेस्ट एवरी डे, यू हैव नॉट रिवाइज. नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, राइट. यू हैव टू फाइंड आउट वेयर डू यू लैक एंड वर्क ऑन दैट एरिया. And if you are one of the students that is lacking behind in revision and you want कोई guide करे, कोई अच्छा crash course मिल जाए, so Allen Online has just launched its 30-day crash course program for NEET UG aspirants. This crash course is mainly focused on improving your speed, accuracy and confidence in the last 30 days. वो जो last push required होता है ना revision के लिए, that basically this crash course is providing that. रोज 4 लाइव क्लासेस होंगी, each 90 minutes long, 6 days a week. And not only this, you will also get all the study material soft copy में, and सारे question practice and a lot of tests. Not only this, you get doubt solving with the faculty in the live classes, and also 24/7 doubt support on the Allen app. You also get 2 All India Open online tests. Through this, you can benchmark yourself. Where do you actually stand in the country, right? This batch starts on 28th of March 2025. So if you require one last push for your preparation in the form of revision through live classes, or you need all India level test, this is it. Also, it's only priced at 2,500 rupees, and if you want extra 200 rupees off, just use my coupon Aniket200. Most important thing that people miss is actually revision.
they don't revise the syllabus well enough, right? Mock test में कम नंबर आना, फॉर्मूला भूल जाना, you cannot afford फॉर्मूला भूल जाना, right? फॉर्मूला भूल जाना is just out of the realm of possibilities. वो हुआ then you are cooked bro, you are cooked. So don't do that. Revise everything multiple times, है ना? एक फिजिक्स का एक नोटबुक में अगर तुमने बनाया है, so you can revise it multiple times very easily. 2 घंटे लगते हैं पूरा फिजिक्स रिवीजन करने में. Do that multiple times. At least do it twice a week. फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिवीजन करते रहो, इनऑर्गेनिक रिवीजन करते रहो. रिवीजन होगी तो ये याद रहेगा. एंड हमें एट लास्ट वही 3 घंटे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स ताकि उस दिन सब याद रहे. एंड जो चीज़ भूल रहे हो, जो चीज़ रिवीजन करने से हमें पता चला यार मैं भूल रहा हूँ, उसको मार्क कर लो. रेड कलर के स्केच पेन, रेड कलर के पेन से मार्क कर लो उसको. यू विल जब अगली बार रिवीजन करोगे, योर अटेंशन विल गो टू दैट पोर्शन. रिवाइज दैट पोर्शन वेल. यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर दैट डे. किसी टेस्ट में कम ज़्यादा नंबर आना इज नॉट अ बिग डील. फॉर्मूला भूल जाना इज अ वेरी बिग डील. गो रिवाइज एवरीथिंग. इफ यू आर फॉरगेटिंग formulas in test, you cannot afford that. And I'm not talking about test a lot because I think if you're a viewer of this channel, you know previous year question solve करने and mock test देने बहुत सारे. So mock test तो देनी है, but what I have done ना, I have slowed down in the mock test department. As I've planned, मैंने plan किया था I'll give 1 mock test every single day or at least 1 mock test every other day. But I'm not doing that because I feel very comfortable in full syllabus mock test. मैं 2 घंटे में दे देता हूँ टेस्ट, मुझे कोई एंग्जाइटी फील नहीं होता है, मैं अच्छे से टेस्ट दे देता हूँ. आई एम स्कोरिंग ओके, मार्क्स की बात नहीं है यहाँ पे, बट द थिंग इज आई एम कंफर्टेबल इन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट वाला डिपार्टमेंट नहीं बचा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला डिपार्टमेंट बचा. सो आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वाइज टेस्ट. आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ पार्ट वाइज टेस्ट एंड वहाँ पे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मैं उन्हें लिख रहा हूँ अलग से. आई एम एनालाइजिंग इट वेरी प्रॉपरली एंड आई एम राइटिंग देम डाउन इन माई फाइनल मिस्टेक बुक. एंड यू ऑल्सो हैव टू डू दिस. फाइनल मिस्टेक बुक बनाना बहुत जरूरी है फॉर द लास्ट 2 months एंड दिस इज ऑल्सो माई प्लान. क्योंकि लास्ट 2 months में यही चीज़ जो बोल रहे हो, जो गलती हो रही है वही गलती होगी एग्जामिनेशन के दिन भी. सो आई एम राइटिंग ऑल माई मिस्टेक्स. कुछ भी कहीं भी गलती हुआ उसमें जाएगा मेरे फाइनल मिस्टेक बुक में. कोई इंपॉर्टेंट अब ऐसे क्वेश्चंस मेरे से गलत हुए, सो आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं इसको अपने मिस्टेक बुक में कोई जगह नहीं दूंगा. आई विल ओनली गिव प्लेसेस टू द क्वेश्चन दैट आई थिंक कुड बी आस्क्ड एवर. This is what I'm doing. Most of this thing I also did last year and I was able to push my marks a lot even last year. So I think this year is going to be good, right? सारे चीज़ कर लिए एंड अगेन अब से बिलीव इन योर सेल्फ. ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन लास्ट 2 months यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. यू हैव टू बिलीव. इफ यू डू द राइट थिंग्स ना, ऐसे भी कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा. जस्ट कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स. एक्सट्रीम डेडिकेशन दिखाओ, सुबह उठ के पढ़ना. एंड वो मैं टाइम टेबल इस वीडियो में बताऊंगा भी नहीं. 4 बजे उठो, 10 बजे सो, नहीं. बस वही है, ध्यान रखना मार्च के मिड से या एटलीस्ट अप्रैल के शुरू होने तक अपने आप को, बॉडी को ऐसा एडजस्ट कर लेना कि योर बॉडी मोस्ट एक्टिव एट 2 to 5 PM इन द आफ्टरनून, राइट. ऐसा नहीं हो कि सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, अब 2 बजे तक थका, नींद आ गया, या फिर रात में 5 बजे सो ही रहे हैं, अभी उठा फ्रेश नहीं है 2 बजे तक. डोंट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स. सो या दिस वॉज माई लास्ट 2 months प्लान. यही मेरा प्लान किया है मैंने. लास्ट ईयर भी मोस्टली सिमिलर प्लान था एंड दिस ईयर ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू द सेम थिंग. दिस जस्ट अबाउट एक्सट्रीम डेडिकेशन एंड डूइंग द राइट थिंग्स. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए. एंड या that's it for the video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye. See you soon.